عالمی بینک کے اعلیٰ سطحی وفد نے یلو لائن بیاچی منصوبے کے سائٹ آفس اور جام صادق پل کے قریب تعمیراتی کام کا تفصیلی دورہ کیا۔ سینئر وزیر شجرینا میمن، سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن اور ایم ڈی سندھ میس ٹرانزٹ اتھارٹی کمال دایو نے وفد کا استقبال کیا۔ سائٹ آفس آمد پر اعلیٰ سطح اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینئر وزیر شجرینا میمن نے وفد کو یلو لائن بیاچی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ شجرینا میمن نے یلو لائن بیاچی منصوبے کی افادیت، اہمیت اور پیش رفت پر روشنی ڈالی اور اس سے ایک اسٹریٹجک اور ویژنری منصوبہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ شاہراہ نور جہاں سے کورنگی انڈسٹریل ایریا اور لانڈھی تک محیط ہوگا۔ روزانہ لاکھوں افراد مستفید ہوں گے۔ یلو لائن نہ صرف شہریوں کی نقل و حرکت کو بہتر بنائے گی بلکہ معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ دے گی۔ ورلڈ بینک کے وفد میں ریجنل وائس پریزیڈنٹ مسٹر عثمانی دیونی اور دیگر بھی شامل تھے۔ شہر سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے میئر کراچی متحرک محکمہ اینٹی انکروچمنٹ کی جانب سے ضلع شرقی، جنوبی اور کماڑی میں کل سے گرینڈ آپریشن کا آغاز ہوگا۔ تجاوزات قائم کرنے میں ملوث افراد جیل جائیں گے۔ سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمار خان نے کہا کہ شہر میں تجاوزات کے خلاف محکمہ اینٹی انکروچمنٹ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ تجاوزات قائم کرنے میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات بھی درج ہوں گے۔ کسی بھی شخص کو شہر کی خوبصورتی کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نیو کراچی سیکٹر 5D میں پارکنگ مافیا قابض ہے، جس کے باعث علاقہ مکینوں کو کئی مسائل کا سامنا ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں رضوان احمد کی رپورٹ میں۔ شہر میں جا بجا پارکنگ مافیا کا بڑھتا تسلط، پارکنگ مافیا بے لگام شہریوں سے بھتہ وصولی جاری۔ نیو کراچی سیکٹر 5D میں 2 ایکڑ رقبے پر محیط پارک کی اراضی انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پارکنگ مافیا نے اپنے پنجے گھاڑ رکھے ہیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ سیاسی سرپرستی میں چارج پارکنگ مافیا نے علاقے میں درجنوں مسائل کو جنم دے رکھا ہے۔ پارک کی تو بہت ضرورت ہے، یہاں پر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہاں پر روڈ اتنے خراب ہیں کہ بتا نہیں سکتے آپ کو۔ روڈ یہاں سے گاڑیاں اتنی گزر رہی ہوتی ہیں، اور یہاں پر پارک یہ کہ ہم جب سے ہی نہیں بن پائے ہیں اگر کوئی بھی چیز پارک وغیرہ، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ یہاں پر پارک بنا جائے۔ یہ قبضہ سنبھلنا بھی ہے، پارکنگ کا پورا بن چکا ہے، اور کچھ دن پہلے ابھی یہاں پر مٹی بھی ڈلی گئی تھی پارک کے لیے، انڈر گراؤنڈ میں تھوڑا کام بھی ہوا تھا کہ امید ہمیں جا کے دیکھ شاید یہاں پہ پارک بند ہے، لیکن اس کی جلدی اگلے دن وہ مٹی بھی چلے گئی، وہ کریج بھی چلا گیا، یہاں پہ کچھ دیوار کھڑے ہوئے، تختے وغیرہ لگے تھے، وہ بھی چلے گئے۔ رہائشی خاتون اور دیگر کا کہنا تھا کہ وہ پارک کی عدم تعمیر سے نہ صرف سستی اور صحت مندانہ سرگرمیوں سے محروم ہیں، بلکہ پارکنگ کے لیے آنے والی گاڑیوں سے بھی ہر وقت حادثے کا خدشہ رہتا ہے۔ پارکنگ بنائی ہوئی ہے یہاں پہ، دیکھیں ٹرک اتنے بڑے بڑے کھڑے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے نقصان دہ، کبھی بچے آ جائیں تیزی سے، بالکل گھر کے دروازوں کے آگے بڑے بڑے ٹرک کھڑے جمبو، جو ہم لوگ بہت مشکل میں آتے ہیں۔ پلیز پارک بن جائے تو بہت اچھا ہے۔ بچے بھی یہاں کھیل رہے ہوتے، کچھ عرصے پہلے ہوا تھا یہاں پر پارک کا، امید ہوئی تھی کہ بنے گا، ایک بورڈ بھی لگا تھا سٹی گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن اس کے بعد پھر کوئی بھی اس کا نہیں ہوا۔ صحت مند ماحول کے لیے سرسبز و شاداب پارکس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انتظامیہ سنجیدہ اقدام کرتے ہوئے فلفور پارکنگ مافیا سے چھٹکارا دلایا جائے۔ کیمرہ مین اجلام چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ شہریوں کو پارکنگ مافیا کے چکر میں پھنسا دیا گیا۔ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کی نیوز کانفرنس، کہا کہ شہریوں کو موٹر سائیکل پولیس سے چھڑانے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے۔ ایس پی سی اے میں 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران کو تعیناتی سپریم کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کیا کہا، یہ سنواتے ہیں۔ تو پھر ٹریفک پولیس کی مافیا آتی ہے جو آپ کی موٹر سائیکلیں اٹھا کے ان جگہوں سے لے جاتی ہے جہاں آپ نے گاڑی پارک کی ہے، اور 50 روپے پارکنگ کے دینے سے بچنے کے لیے اگر آپ نے پارکنگ ختم کی تو وہ جو لے کے جاتا ہے بائک کیری کر کے وہاں سے اٹھا کے لفٹ کر کے، وہ پھر 500 روپے 1000 روپے رشوت وصول کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر کہ صاحب لیاری میں مخدوش عمارت گری تھی، اب پورے شہر میں مخدوش عمارت ڈکلیئر کر کے جو آپ نے 38 افسران آپ نے 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو آپ نے یہاں پہ لاگے ایس بی سی اے میں ان کی سروسز کو ضم کیا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر یہ تھا کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا بندہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کام نہیں کر سکتا، اور یہی وجہ تھی کہ جو کے ایم سی کے افسران تھے کے ڈی اے میں سروسز کر رہے تھے انہیں واپس کے ایم سی میں بھیجا گیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پورے سندھ کے اندر اس کے آفیسز ہیں، لاڑکانہ میں بھی ہیں، حیدرآباد میں بھی ہیں۔ اگر یہاں افسران کی کمی تھی تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کو یہاں ٹرانسفر کیا جا سکتا تھا،
लेकिन 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी जो एक अलग इदारा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बरखिलाफ उनको यहां 38 अफसरान को भेजा गया और तमाम टाउन्स के अंदर उनको तैनात किया गया है। रेंजर्स और पुलिस ने बिन कासिम के इलाके में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक कलअदम जमात से ताल्लुक़ रखने वाले शरपसंद मुल्ज़िम अताउल्लाह शर की मौजूदगी की इत्ला पर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के नतीजे में 2 मुल्ज़िमान जाहिद अली मक्सी और अब्दुल गफूर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान के कब्जे से 1 अदद मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। दोनों मुल्ज़िमान 27 अप्रैल और 22 जून 2025 को दौरान एहतजाज सरकारी अमलाक और गाड़ियों को नुकसान पहुँचाने में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की मज़ीद साथियों के कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। मुल्ज़िमान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। शहर वसाइल के अंबार लग गए। कोरंगी के मकीन पानी, बिजली और गैस को तरस गए हैं। शहरी कहते हैं पानी की किल्लत का सामना करते करते अरसा गुजर गया। गैस की लाइनें मौजूद होने के बाद भी गैस नायाब है। मुंतखब नुमाइंदे वोट हासिल करने के बाद गायब हो गए हैं। कोई भी मसला हल करने को तैयार नहीं। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। शहर कायद में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, पीने को पानी नहीं, पकाने को गैस नहीं, सोने के लिए बिजली नहीं, रहने के लिए साफ जगह नहीं, दरख्वास्तें कबूल नहीं की जा रही। मुंतखब नुमाइंदे भी वोट लेने के बाद पलट कर नहीं देखते। कोरंगी के मकीन फट पड़े। कहते हैं इलाके में वाटर कनेक्शन होने के बावजूद पानी मुयस्सर नहीं। हम 15 दफा गैस की कंपनी जा चुके हैं। हमने उनको यही बोला कि गली नंबर 3 में बिल्कुल गैस नहीं है। इतने परेशान है कि 2-3 दफा हादसा भी हो गया हमारे घरों में, सिलेंडर तक फटा है और बच्चे तक जले, लेकिन इन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं करी। हम लोग जिलानी साहब हैं, उनके पास गए थे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमारे घर में भी गैस नहीं है। जब तुम्हारे घर में गैस नहीं है तो तुम क्यों किस चीज के इधर चेयरमैन बने हुए इलाके के? जब इलाके को सपोर्ट ही नहीं कर सकते तो क्या फायदा फिर। मकीनों ने शिकवा किया कि टैंकर खरीदने के बावजूद गुजारा मुश्किल हो गया। महंगाई के इस दौर में पानी खरीदना सबसे मुश्किल काम है। अपनी मदद आपके तहत यहाँ काम करते हैं। टाउन से जो बोलते रहो, एप्लीकेशन लिखते रहो, कोई भी नहीं आता। यहाँ पर इतनी गंदगी होती है, बारिश के टाइम पे तो ये पानी बिल्कुल बाहर आ जाता है रोडों पे। आवाम बहुत परेशान होती है। यहाँ पर गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बगैर नाश्ते के जाते हैं। सिलेंडर ही चल रहा है, गैस तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है भाई। 3 हो ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग थोड़ा ऐसे बैठे हुए, बच्चे भूखे प्यास से चल रहे हैं। मकीनों का कहना था कि बरसों गुजर गए लेकिन पानी का मसला कोई हल करने को तैयार नहीं। वोट मांगने के लिए हर जमात का नुमाइंदा नजर आता है, फिर सब गायब हो जाते हैं। मुतालिका इदारे कोरंगी के बुनियादी मसाइल फौरी हल कराएं। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 20। अहलियान कराची गैस बिजली के मसाइल से निजात के मुंतजर हैं। मवाज कोट, लांडी, जहांगीराबाद, औरंगी, कोरंगी समेत दीगर इलाके मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की तवील बंदिश और बिजली की एलानिया लोड मैनेजमेंट ने आवाम को परेशान कर रखा है। गैस से मुतासरा इलाकों में मवाज कोट, लांडी, जहांगीराबाद, औरंगी, कोरंगी समेत दीगर इलाके शामिल हैं, जहाँ शहरियों की रात से सुबह तक 8 घंटे तक गैस की फराहमी मुअत्तल रहती है, जबकि दिन में भी गैस प्रेशर का मसला दरपेश है। बिजली के हवाले से तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 30% बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड मैनेजमेंट की जा रही है, जिनमें मलीर, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, कायदाबाद जैसे इलाके शामिल हैं। ताहम 70% कराची में बिला ताअतुल बिजली की फराहमी जारी है। शहरियों ने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि मामूलात ज़िंदगी मुतासर न हों। शहर कायद में रिगल चौक पर कई दहाइयों से लगने वाला किताब बाजार आज भी नौजवानों की तवज्जो का मरकज है। नौजवान कहते हैं जो किताब आम दुकानों पर 1000 रुपए तक मिलती है, इस बाजार में 200-300 तक मिल जाती है। शहरियों ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। ताल्लुक तो लिटरेचर से, तो मैं ज़्यादातर लिटरेचर की बुक्स देखने आता हूँ, और क्योंकि यहाँ पे बहुत कम दाम में यहाँ पे बुक्स अवेलेबल हैं, तो मुझे वैरायटी ऑफ बुक्स मिल जाती हैं लिटरेचर के हवाले से, खासकर इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि मैं क्लिफ्टन का रहायशी हूँ, तो वहाँ पे 1-2 जो बुक शॉप है वहाँ मैं गया हूँ, तो वहाँ पे जो एवरेज बुक की प्राइस है वो 800-1000 है। बढ़ती महंगाई शहरियों की जिंदगियों पर बुरी तरह असरअंदाज हो रही है। शहरी पूरा हफ्ता अब इतवार बाजार का इंतजार करते हैं। यही वजह है कि मुख्तलिफ बचत बाजारों में शहरियों की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए आती है, सस्ती और मेयारी अशिया खरीदने पर इक्तफा करती है। शायान अली की रिपोर्ट।
महंगाई के तूफान में आवाम को बचत बाजार का सहारा। कमिश्नर कराची की हिदायत पर मुख्तलिफ इलाकों में इतवार बाजार कायम। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है तो दूसरी जानिब कमिश्नर कराची की जानिब से इतवार के रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बचत बाजार कायम किए जाते हैं। राशिद मिन्हास रोड पर कायम इतवार बाजार में कोई सब्जी और कोई फल खरीदने में मसरूफ तो कोई सस्ती ब्रांडेड चीजें लेने पर इक्तफा कर रहा है। स्कूल शुरू होने से पहले ही वालिदैन को बच्चों के लिए बैग्स और शूज की तलाश। बच्चों के लिए शूज लेने के लिए आई हूँ। अच्छी और मुनासिब कीमत में मिल जाती हैं और मजबूत होती हैं। यह है कि पहले से नए में हम ले नहीं पाते हैं तो ये है कि पुराना पायदार भी नहीं होता। ये है कि बाहर का माल होता है, स्पॉट माल होता है तो ये अच्छा चल जाता है। बस यार ये जूता लेने आए हैं हम लोग। ब्रांडेड जूते होते हैं यहाँ पे और सस्ते मिलते हैं। नए जूते लोकल होते हैं वो कुछ दिन में टूट जाते हैं। उससे अच्छी लाइफ नए जूते जो महंगे भी मैं देखता हूँ मिलते हैं यहाँ पे मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं। मुनासिब कीमत में बिल्कुल सस्ते मिल जाते हैं। कहते हैं कि थोड़ा सा ढूंढने से मिलती चीज या तो फिर आसानी से आ जाए तो मिल जाती है। थोड़ा वर्किंग करनी पड़ती है क्योंकि ब्रांडेड है, अच्छी बुरी हर चीज़ आती है तो अच्छे से देखनी पड़ती है कि पायदार जो हो, साफ हो, सुथरा हो, क्योंकि इसमें रिजेक्टेड पीस भी होते हैं, साफ सुथरे भी होते हैं। ये सिर्फ देखने पड़ते हैं लोगों को। दुकानदारों का कहना है इतवार बाजार में शहरियों को ब्रांडेड जूते मुनासिब कीमत पर मिल जाते हैं। मुख्तलिफ ब्रांड है, जितने ब्रांड दुनिया में होते हैं वो सब हमारे पास, उसमें कॉपियाँ भी और हमारे पास ओरिजिनल भी है ना। तो लोग आते हैं सस्ता, कम से कम 2000 से लेके फिर ऊपर तक जाओ 6000, 7000, 8000 रुपये। और क्वालिटी यहाँ पे अच्छा है माशाल्लाह। इतवार जो बचत बाजार है ये बहुत अच्छा बाजार है। लोग बड़े दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग। इंतजामिया के मुताबिक इतवार बाजार में आए हर शहरी को तमाम सहूलियात फराहम की जाती हैं, जबकि शहरियों की शिकायत पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ शयान अली, सिटी 21। गवर्नर सिंध से MQM लेबर डिवीजन के वफ्द की मुलाकात। मजदूरों के मसाइल, रोजगार, फलाही इक़दामात पर तबादला ख्याल। कामरान चसोरी की मार्का हैक जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारियां करने की हिदायत। गवर्नर सिंध ने मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। गवर्नर सिंध से MQM लेबर डिवीजन के वफ्द की मुलाकात हुई है। मजदूरों के मसाइल, रोजगार, फलाही इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। कामरान चसोरी की मार्का हैक जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारियां करने की हिदायत। गवर्नर सिंध ने मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 609 पॉइंट्स इजाफे से 1,39,207 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक हफ्ते में 171 अरब रुपए का इजाफा हुआ। S&P रेटिंग एजेंसी ने 3 साल बाद पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी के साथ आउटलुक मुस्तहकम कर दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की जानिब से मिला जुला रुझान। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 609 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इंडेक्स 0.44% इजाफे से 1,39,207 की सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सरमायाकारों की नजरें 30 जुलाई की मॉनेटरी पॉलिसी पर जमी हुई हैं, जिसकी वजह से मार्केट में मिला जुला रुझान देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स ने कारोबारी हफ्ते में अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,40,202 बनाई। हफ्ते के दौरान मार्केट में 145 अरब रुपए मालियत के 3 अरब 17 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक हफ्ते में 171 अरब रुपए बढ़कर 16,688 अरब रुपए पर पहुंच गई। S&P रेटिंग एजेंसी ने 3 साल बाद पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतर करने के साथ आउटलुक मुस्तहकम कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि सरमायाकार 30 जुलाई की मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में कमी पर तवक्कुआत हैं। अशरफ खान, सिटी 21। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां अपने इख्तिताम के करीब पहुंच गईं। छुट्टियों के आखिरी इतवार को शहरियों का तफरीही मुकामात पर रश। कोरंगी ज़ू में भी बच्चों ने खूब एंजॉय किया। बच्चे कहते हैं कि स्कूल खुलने का दुख है क्योंकि पढ़ना बहुत पड़ता है। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। छुट्टियों का इख्तिताम आखिरी इतवार का हल्ला गुल्ला, तफरीह का हंगामा। मौसम गर्मा की तालीमी इदारों की तातीलात खत्म होने में चंद रोज बाकी। संडे को फंडे बनाने के लिए शहरियों ने किया तफरीह मकामात का रुख। पार्क, पिकनिक स्पॉट्स और तफरीह मकामात बच्चों के कहकों से गूंज उठे। वालिदैन बोले 2 माह बच्चों ने खूब तंग किया। कभी बाहर घूमने की जिद तो कभी नानी के घर जाने का शोर होता रहा। ये बहुत तंग करा इन्होंने। कभी बाबा इधर ले चले, बाबा इधर से, नानी के ले चले, चिड़ियाघर ले चले। ये भाई उनको स्लाइड चाहिए, झूला चाहिए, हर वक्त बाहर। पूरे 2 महीने में सिर्फ उधम करा और कुछ भी नहीं करा बस। बच्चों ने कहा कि अब फिर से स्कूल के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। रोज पढ़ता था, रोज पढ़ते मम्मा डांटती थी। यूनिफॉर्म निकाल लिया?
नहीं, अभी मम्मा निकालेंगे। मौसम गर्मा की छुट्टियों का आखिरी इतवार बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें और वालिदैन के लिए कीमती यादें छोड़ गया। अब छुट्टियां खत्म और तालीमी सफर दोबारा शुरू होने को है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ अक्सर शाहिद, T21। FEMT की जानिब से KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटसॉल टूर्नामेंट के मुकाबले हुए। टूर्नामेंट में मैट्रिक, O लेवल, A लेवल और कॉलेजेस की टीमों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले खेले गए। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। नौजवानों का सेहतमंद माहौल की फराहमी का मिशन, फुटसॉल टूर्नामेंट का इनेकाद, मिस्बत सरगर्मियों की जानिब पेशरफ। FEMT की जानिब से KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटसॉल टूर्नामेंट के सनसनीखेज मुकाबले हुए। टूर्नामेंट में मैट्रिक, O लेवल और A लेवल के तलबा ने दिलचस्प खेल पेश किया। स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हसन अनीस का कहना था कि इवेंट में अंडर 18, अंडर 21 के नौजवान शामिल हैं। टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को मिस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना है। इदारे की जानिब से साल में दोबारा ऐसे टूर्नामेंट मुनक्किद किए जाते हैं ताकि तालीम के साथ खेल को भी फरोग दिया जा सके। हमारा जो मेन मोटो है कि यूथ को हम प्रमोट करें। हमने इसीलिए अंडर 18 जिसमें स्कूल्स एंड कॉलेजेस को हमने टारगेट किया है। इसके अलावा जो यूथ कैटेगरी है इसमें जो हमारे यूथ है उनको हमें स्पोर्ट्स में इंगेज करना है। आपको पता है एक फुटसॉल एक यूनिटी वाला एक स्पोर्ट है। इसके अलावा हमने कॉर्पोरेट्स को भी इन्वाइट किया है जिसमें जितने भी टेक कंपनीज है, सॉफ्टवेयर हाउसेज है, कॉर्पोरेट्स है, जिस तरह आपको पता है माइडस सेफ्टी, ओरिएंट सॉफ्ट सॉल्यूशंस हमारे पास आए हैं। तो कॉर्पोरेट्स में आपको पता है ऑफिसेज की टीम जो है वो एज अ टीम खेले, उनके अंदर स्पिरिट ऑफ यूनिटी आए और बेसिकली हमारी जो इदारा है उसका मकसद ही यही है कि स्पोर्ट्स को हम एनहांस करें इंशाल्लाह ताला। खिलाड़ियों ने भी ऐसे इवेंट्स के इनकाद को खुश आइन करार दिया और कहा कि इससे न सिर्फ खेलों का रुझान बढ़ेगा बल्कि नया टैलेंट भी सामने आएगा। और नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया है टर्फ वगैरह और लाइक एवरीथिंग, और मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि ऑब्वियसली अभी समर वेकेशंस भी और चल रही हैं तो स्किल्स के साथ और थोड़ी फुटबॉल और एक्टिविटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत कॉलेज से टीम्स आई हुई हैं, हम लोग तो अपने आए हैं, तो नहीं अच्छा ऑर्गेनाइज वगैरह करवाया हुआ है और मैं बोलता हूँ ऐसे होने चाहिए। हमने दो मैच खेले, एक मैच हमारा बराबर हुआ, दूसरे में हम लोग जीत गए। अभी हमारा जो मैच हो रहा है उसके बाद क्वार्टर फाइनल हमारा है ट्रैक से, जो हारा नॉकआउट। देखें पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का रुझान तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि हम बेस्ट कर सकते हैं कि हमारी अगर टीम बने तो उसमें हम बेस्ट प्लेयर्स डालें। तो इसलिए खेलने के साथ साथ काफ़ी बच्चे जो है वो को करिकुलर में भी काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उसके लिए जो है वो ये ऑर्गेनाइज करवाना काफ़ी अच्छी बात है। फुटसॉल मैदान में नौजवान खिलाड़ियों का जोश और जज्बा, गोलकीपर की शानदार सेविंग्स और शायकीन की तालियों से फुटसॉल का मैदान गूंज रहा था। कराची में नौजवानों के लिए इस नौयत के टूर्नामेंट जहां इनकी सलाहियतों को निखारने का जरिया है, वहीं खेल के मैदान से जुड़ने का बेहतरीन मौका भी फराहम कर रहा है। कैमरामैन ताबिश के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। अदाकारा सोनिया हुसैन कहती हैं कि फिल्म दीमक को शहरियों की जानिब से पज़िराई मिलने पर बहुत खुश हूँ। उन्होंने बताया कि चाइना में फिल्म को अवार्ड मिलना पाकिस्तान की फिल्मी सनत के लिए बड़ा एहसास है। सोनिया हुसैन ने पूरी कौम को जश्न आज़ादी की पेशगी मुबारकबाद भी दी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। बिल्कुल जी, देखें शोबिस इंडस्ट्री के हवाले से अगर बात की जाए तो शोबिस का खूबरू एक नाम, एक चमकता धमकता सितारा सोनिया हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हाल ही में इनकी जो फिल्म है दीमक, उसने कारकर्दगी के तमाम रिकॉर्ड जो है वो कायम किए। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर कि हमारी फिल्म को चाइना फिल्म फेस्टिवल में, विच वाज अ ह्यूज फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पे एक इज्जत से नवाजा गया है। मैं दुआ करती हूँ कि इस तरह से ना ही सिर्फ दीमक बल्कि जैसे लव गुरु हमारी फिल्म है और हमारी और भी दीगर जो मूवीज़ है पाकिस्तान की, वो बाहर इंटरनेशनली जाके नाम रोशन करे पाकिस्तान का। अच्छा, आपने बहुत सारे अदाकारों के साथ काम किया है। हाल ही में अगर इन फ्यूचर आपको ऑफर होती है हुमायूं के साथ स्क्रीन शेयर करने में, तो आप कौन सा किरदार निभाने में फ़ख्र महसूस करेंगे? देखिए, कोई इसमें हर्ज नहीं है कि फ़िल्म रोम कॉम हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक सब्सटेंस भी फिल्म में होना ज़रूरी है। एज लॉन्ग एज मेरी बात कंसर्न है, मुझे लगता है कि कैरेक्टर कोई भी हो, रोमांस तो इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट आई थिंक कोई सब्सटेंस, कोई सिग्निफिकेंट कैरेक्टर हो तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। अदाकारा सोनिया हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी जी।